Friends, till now, in second chapter, that is utility analysis, we have discussed that as a consumer, when we go to market, how do we behave? It depends on one word, and that is utility. The capacity of a commodity to satisfy a human want. Basically, it is of 5 types. Sorry. फॉर्म यूटिलिटी, जहां पे कपड़े का इस्तेमाल बाबा रामदेव करते हैं, अपने को तो शर्ट या टी शर्ट में कन्वर्ट करके यूज करना होता है. प्लेस यूटिलिटी, कश्मीर वालों को स्वेटर की अहमियत बढ़ जाती है. टाइम यूटिलिटी, छाते का इस्तेमाल बारिश में याद आता है. सर्विस यूटिलिटी, जब तक एक टीचर है तब तक उसको रिस्पेक्ट है. पोजीशन यूटिलिटी, ट्रांसफर ऑफ गुडविल, थम्सअप का एग्जांपल दिया था. नॉलेज यूटिलिटी, जब एक पर्टिकुलर कमोडिटी का नॉलेज बढ़ जाता है तो उसका इस्तेमाल बढ़ जाता है. लास्ट टॉपिक वी हैव कवर्ड दैट वाज फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी. Utility is subjective and relative concept. It depends on our mental attitude. It differs from time to time, place to place, and person to person. It has no ethics. Morally, it is colorless. It will not say anything is right or wrong. Example, smoking. हम कभी नहीं बोलेंगे कि स्मोकिंग मत करो. हम बोलते कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ. सही गलत तू जान. It is different from satisfaction. It is different from pleasure, and it is different from usefulness. It depends on intensity of want. It is multi-purpose. It increases with knowledge, and it uses money for measurement. Today, our topic is concepts of utility. Friends, let me clarify one thing. If you want to understand the word utility, थोड़ी देर के लिए हम ये मान लेते कि यूटिलिटी का मतलब सेटिस्फैक्शन, यूजफुलनेस, जहां पे अपनी कोई इच्छा पूरी करने की औकात, क्षमता किसी एक पर्टिकुलर चीज में है. तो when we consume any product, it is utilization of that product. Whether it is good or bad, whether it is useful or harmful, whether it gives pleasure or not, that is different concept. But when we consume any product or service, जब मैं कोई चीज वापरूं, it means this is the utilization of that product. मैं उस प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहा हूं, मतलब मैं उस प्रोडक्ट को वापर रहा हूं, मतलब मैं उसको यूटिलाइज कर रहा हूं. तो यहां पे we have two different concepts of utility. One is total utility and another is marginal utility. थोड़ी देर के लिए समझने के लिए मैं कॉन्सेप्ट को थोड़ा आसान कर दूं. फ्रेंड्स, टोटल यूटिलिटी को हम समझे टोटल सेटिस्फेक्शन, टोटल खुशी. वाइल मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल, दैट इज एडिशनल. याद करो फ्रेंड्स, लेट मी रिकैप चैप्टर 1, फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, जहां पे एक पॉइंट था मार्जिनल एनालिसिस. मार्जिनल, दैट इज द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ब margin, anything extra through minor changes. तो what is marginal utility? Marginal utility मतलब additional satisfaction, extra satisfaction, थोड़ी और खुशी. तो total utility मतलब total satisfaction and marginal utility मतलब extra satisfaction. Friends, the topic which we are going to discuss now, let me explain you something about question itself first. The question is, explain the relationship between total utility and marginal utility. Dear friends,
लेट मी क्लैरिफाई समथिंग. ये क्वेश्चन व्हेन आई वाज इन 12th स्टैंडर्ड, उस वक्त भी चैप्टर 2 में यहीं पर था. और पिछले 22 इयर्स को अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पहले 16 सालों तक नहीं पूछा जाता था. आई रिपीट फ्रेंड्स, फर्स्ट 16 इयर्स तक ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाता था. वाई आई डोंट नो. तो लोगों ने इस टॉपिक को पढ़ाना स्किप करना शुरू कर दिया. इसको ओमिट कर दो. इंक्लूडिंग कॉलेज प्रोफेसर्स, क्लासेस टीचर्स, ये जस्ट ओमिट द टॉपिक. जाने दो क्यों पढ़ा है. क्योंकि टॉपिक इज स्लाइटली क्रिटिकल टू एक्सप्लेन. स्लाइटली इट इज ऑफ हाई लेवल. उतना आसानी से समझ में आ जाए ऐसा ये टॉपिक नहीं है. फ्रेंड्स, let me recap. Before some 2 lectures, we have discussed that for the very first time in our life, after the study of 12 years, पहली बार हम कुछ अपने बारे में समझने बैठे हैं. How do we behave? What is our behavior? ऐसे तो फ्रेंड्स मैं सच बताऊं ना, तो when we use word economics, तो economics is the backbone. I repeat my words. Economics is the backbone of human behavior. It teaches us how to live rich social life. Economics कुछ ऐसी बातें डिस्कस करता है जो और कोई सब्जेक्ट आपके साथ डिस्कस कभी नहीं करेंगे. सच बताऊं तो it explains how to make living and how to live. जीना कैसे है और जीने के लिए जो चीजें हमें चाहिए वो कैसे पानी है. तो टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, ये दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है, जहां से अपना बिहेवियर पैटर्न डिसाइड होता है. आई रिपीट फ्रेंड्स, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, ये दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है, वहीं से अपना बिहेवियर पैटर्न एज ए ह्यूमन बिहेवियर, हाउ डू वी बिहेव, ये यहीं से शुरू होता है. और फ्रेंड्स, इस टॉपिक को बोर्ड एग्जाम में पहले 16 इयर्स तक दे डिडंट आस्क, तो लोगों ने इसको पढ़ाना छोड़ दिया था. ये टॉपिक को समझने में 2 से 3 लेक्चर चले जाएंगे फ्रेंड्स. तो लोग सोचते थे क्यों पढ़ाए जब ये पूछते ही नहीं है. फ्रेंड्स, मैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ माई टीचिंग इन 12th स्टैंडर्ड, मैं तब से इस टॉपिक को 2 लेक्चर जाए 3 लेक्चर जाए मैं पढ़ाता हूं, मैं सिखाता हूं. बिकॉज दिस इज द बेस, दिस इज द ओरिजिन, दिस इज द प्लेटफॉर्म ऑफ आवर बिहेवियर. स्टूडेंट्स ऑल्सो टोल्ड मी, सर क्यों पका रहे हो, क्यों पढ़ा रहे हो, वो पूछते ही नहीं. बट फ्रेंड्स, बिफोर 6 इयर्स एक बोर्ड एग्जाम में ऐसा हुआ कि 8 मार्क के लिए दे आस्क्ड दिस क्वेश्चन इन क्वेश्चन नंबर 6, सब क्वेश्चन 1 फॉर 8 मार्क्स. और फ्रेंड्स, उस वक्त मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स वुड नॉट बी एबल टू अटेम्प्ट द आंसर, क्योंकि कहीं सिखाया ही नहीं था. पर अपने स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करके आ रहे थे. और वो साल था जब पहली बार अपने पूरे एरिया में 12th इको में बोर्ड में 90 मार्क्स क्रॉसिंग दिखाई दिया, विद द ब्लेसिंग ऑफ गॉड एंड विद द सपोर्ट ऑफ माय स्टूडेंट्स. फ्रेंड्स, ये वो टॉपिक है जहां पे अब हमें थोड़ा ओपन माइंडेड होना पड़े. लेट्स बिगिन विथ द मीनिंग ऑफ दिस 2 वर्ड्स, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी. Total utility is total of all the utilities from all the units of the same commodity used by a consumer, while marginal utility is an addition to total utility by using one more unit of the same commodity.
let me recap each and every single word again. Total utility is total of all the utilities from all the units of the same commodity used by a consumer. While marginal utility is an addition to total utility by using one more unit of the same commodity. अब ये डेफिनेशन, ये मीनिंग, ये दोनों स्टेटमेंट मैं 50 बार बोलूं तो भी समझ में नहीं आएगा. तो लेट मी शेयर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स विथ यू. चलो फ्रेंड्स, थोड़ा सा एग्जाम्पल समझने की ट्राई करते हैं. देखो मेरा इंग्लिश कितना अच्छा है ना. टोटल यूटिलिटी इज टोटल ऑफ ऑल द यूटिलिटीज. मतलब टोटल खुशी क्या है? बोले सभी खुशियों का टोटल कर दो. टोटल सेटिस्फेक्शन क्या है? बोले सभी सेटिस्फेक्शन का टोटल कर दो. तो टोटल यूटिलिटी इज टोटल ऑफ ऑल द यूटिलिटीज फ्रॉम ऑल द यूनिट्स ऑफ द सेम कमोडिटी used by a consumer. एक फालतू एग्जांपल से समझाऊं. सपोज में एक लेक्चर के लिए व्हाइट बोर्ड पे लिखने के लिए एक साथ 3 मार्कर पेन लेकर आ गया. 3 मार्कर पेन लेकर मैं लेक्चर में एंट्री मार रहा हूं. पहला मार्कर पेन यूज करके मैंने 30% ऑफ व्हाइट बोर्ड भर दिया. इंक खत्म हो गई. दूसरा मार्कर पेन यूज किया और 30% बोर्ड भर दिया. इंक खत्म हो गई. 2 पार्ट में बोर्ड भरने के बाद लास्ट बेंच पे जाके मैं देख के खुश हो रहा हूं कि यस मैंने बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा पढ़ाया. तो दोनों मार्कर पेन मिलाकर मुझे जो खुशी मिली है यूज करके, इट इज बाय टोटल यूटिलिटी. तो व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी? बोले मार्जिनल यूटिलिटी इज एन एडिशन टू टोटल यूटिलिटी बाय यूजिंग one more unit of the same commodity. अब दोनों मार्कर पेन जो खत्म हो गई मैंने साइड पे रखी और तीसरा एडिशनल मार्कर पेन लिया. इट इज थर्ड पेन. और अब जो ब्लैंक पार्ट है, जो ब्लैंक पोर्शन है बोर्ड का, अब वो लिख रहा हूं. और वो लिखते हुए मैं सोच रहा हूं कि ये तीसरी पेन यूज करके अब मुझे जो एक्स्ट्रा खुशी मिल रही है बोर्ड भरते हुए, इट इज माई मार्जिनल यूटिलिटी. आई नो कि दिस इज द रबिश एग्जाम्पल. शायद इतना फालतू एग्जाम्पल मैंने कभी ना दिया हो. तो यू आर राइट फ्रेंड्स. कुछ अच्छी चीजों को समझने के लिए शुरुआत हमें कभी कभार फालतू बेस से करनी पड़ती है. यहां पे एक छोटा सा फॉर्मूला है. मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ nth यूनिट, mu ऑफ nth यूनिट इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी of n units minus total utility of n minus 1 unit. तीनों मार्कर पेन से जो बोर्ड भरा गया और मैं लास्ट में जाके खुश होकर देख रहा हूं, वो तीनों मार्कर पेन से लिखा हुआ देखकर मुझे जो खुशी मिल रही है, इट इज माई टोटल यूटिलिटी. बट फ्रेंड्स, अब ये 3 में से एक पेन कम कर दूं तो 2 पेन इस्तेमाल करके जो पोर्शन मेरे बोर्ड का भरा था, ओके, तो तीनों पेन से जो लिखा हुआ था वो टोटल यूटिलिटी था. उसमें एक पेन कम कर दी तो जो तीसरी पेन मैंने बाद में यूज की, 2 पेन इस्तेमाल करने के बाद जब तीसरा पेन पे मैं आया और वो तीसरी पेन से मुझे जो खुशी मिली है एक्स्ट्रा, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी. इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए चलो फ्रेंड्स एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं. सपोज, रिमेंबर वन थिंग फ्रेंड्स, जब मैं सपोज वर्ड बोलूं इट मीन्स के इसमें कोई वर्ड सही नहीं होगा. ये समझने के लिए होता है. अगर आप इंडियन कल्चर में बिलीव करते हो, भले आप कोई भी कास्ट के हो, कोई भी क्रीड के हो, एनी रिलीजन, अगर हम इंडियन कल्चर में है तो फ्रेंड्स इंडियन कल्चर के हिसाब से अगर हम सोचें तो लाइफ का जो गोल्डन पीरियड होता है ना, लाइफ का जो गोल्डन पीरियड होता है, गोल्डन पीरियड ऑफ आवर लाइफ, ये होता है सगाई और शादी के बीच का टाइम. दिस इज द टाइम बिटवीन योर एंगेजमेंट एंड मैरिज. अगर आपने विवाह नाम का मूवी देखा हो, शाहिद कपूर, तो उस मूवी में एक सीन है जहां पे हीरो की भाभी हीरोइन को ये बोलती है कि ये सगाई और शादी के बीच के जो दिन होते हैं ना, ये सुनहरे दिन होते हैं. डोंट मिस इट. इसे पूरा एंजॉय करो.
और फ्रेंड्स, अगर आपके घर पे बड़े भाई बहन हो जिनका शादी हुआ हो, तो आप हर कोई मेरे इस बात से एग्री करोगे कि हाँ, ये बात सच है। सगाई और शादी के बीच में लड़की वाले लड़के को अपने घर पे एटलीस्ट एक बार खाना खाने जरूर बुलाएंगे। वो पूरा सीन अगर मैं आपको समझा पाऊं तो आफ्टर माई एंगेजमेंट फियांसी कॉल करेगी, सुनते हो, नेक्स्ट संडे आपको मेरे घर खाना खाने आना है। और सुनो, सबको नहीं बताना, ये सिर्फ मैं आपको अभी से बता रही हूं कि आप नेक्स्ट संडे क्रिकेट का प्रोग्राम नहीं करना। मेरे पेरेंट्स आपके पेरेंट्स को कॉल करेंगे और मुझे बताओ ना, आपको खाने में क्या पसंद है। अब मैं बोलूं, तू जो बनाए सब पसंद है। नहीं, मुझे तो खाना बनाने आता ही नहीं है। तो पूछा क्यों? नहीं, ये तो पेरेंट्स डिस्कस कर रहे थे मेन्यू क्या रखेंगे, तो मैंने आप पूछ लिया। अब मेरी पहली गलती, सपोज मेरे मुंह से निकला कि मुझे पूरन पोली बहुत पसंद है। सपोज बोल रहा हूं फ्रेंड्स, एक वर्ड भी सही नहीं है। सपोज मेरे मुंह से निकला कि मुझे पूरन पोली बहुत पसंद है। अब उस दिन नेक्स्ट संडे जब ये कुमार खाना खाने जाएंगे, और कुछ हो या ना हो, पूरन पोली तो डेफिनेटली हो। थाली परोसी जाएगी, मैं बोलूं सब लोग साथ में, नहीं, सासू माँ के नहीं, पहले आप, मतलब ट्रायल मेरे पे करेंगे। गरम गरम पूरन पोली लेकर आए, लीजिए ना, शुरू कीजिए। मैंने कहा सब साथ में, नहीं, आप शुरू कीजिए, सब आते हैं, आप शुरू कीजिए। जैसे ही पहला निवाला मुंह में जाएगा, अब मेरी दूसरी गलती, डिलीशियस, इट इज टू टेस्टी, मैंने इतनी टेस्टी कभी नहीं खाई। झूठ बोल रहा हूं, 23 सालों तक माँ के हाथ की बनाई हुई खाई, तब कुछ नहीं, इतनी टेस्टी मैंने कभी नहीं खाई। जैसे मैंने कहा बहुत अच्छी बनी है, टेस्टी बनी है, दूसरी पूरन पोली, तीसरी पूरन पोली, पूरन पोली पे पूरन पोली। मैं बोल रहा हूं कि वो वड़ा बनाया वो लाओ, पापड़ काट, नहीं, वो सब तो आप रोज खाते हो। अरे भाई, रोज नहीं खाते हैं, लेक्चर लेना होता है, गले का ध्यान रखना पड़ता है। नहीं, वो हम आपको घर पे पार्सल बांध के देंगे, आप पूरन पोली खाओ। अरे पर सिर्फ पूरन पूरी कितना जाएगा मुंह में, और मेरा पेट छोटा सा। तो 3 पूरन पोली के बाद तो अब कैपेसिटी ओवर। पेट ने बोल दिया कि अब दाल चावल खा ले, बात खत्म कर। उतने में फियांसी आई, एक मेरी तरफ से। मैंने कहा बस पेट भर गया दाल, मेरे माँ के हाथ की 3 खाई, मेरे हाथ की 1 भी नहीं। चालू इनकी पाइपलाइन हमेशा रेडी होती है फूटने के लिए। अब मैंने पेट को समझाया कि पहली बार ससुराल आया हूं, अगर आज इसको रुलाया तो बाद में जिंदगी भर मेरे को रुलाएगी अपने घर आकर। तो पेट को बड़ा, दाल चावल कैंसिल। चौथी पूरन पोली मुंह में ठूसी गई। पेट ने बोल दिया कि अब कुछ नहीं, पानी पी के खड़े हो जाओ, वरना मिस कॉल मारना शुरू करेंगे। यू कैन अंडरस्टैंड लैंग्वेज, मिस कॉल मारना शुरू करेंगे। उतने में एक सस्पेंस आया। अब तक पता नहीं सस्पेंस कहां था। किचन से साली बाहर आई, जीजू एक मेरे हाथों से खिलाऊं, जीजू मेरे हाथों से खिलाऊं। उस दिन समझ में आया कि साली को आधी घरवाली क्यों बोलते हैं, जीजू मेरे हाथों से खिलाऊं। मैंने कहा नहीं, मैं आपकी बहन को भी मना कर चुका हूं, पेट भर, नहीं दीदी तो रोज खिलाएगी बाद में, मैं मेरे हाथों से खिलाऊं। पेट मना कर रहा है, दिल मांगे मोर। तो 5वीं पूरन पोली मुंह में ठूसी गई। पेट ने बोल दिया अब तो पानी की भी जगह नहीं है, खड़े हो जा। और सिर्फ पूरन पोली कितना जाएगा पेट में, अब तो तू खड़े हो जा, मैं डायल नंबर देना शुरू करेंगे। उतनी देर में ससुर आए, मुंह में तंबाकू चबा रहे थे और मुझे आके बोलते हैं लीजिए ना, एक मेरी तरफ से लीजिए। मैंने कहा नहीं बस पेट भरे। अरे लीजिए, एक लीजिए। सासू माँ बोलती है इतने प्यार से बोल रहे, ले लीजिए ना। मुझे समझ ही नहीं आया कि इसमें प्यार कहां था, डरा रहे थे, लीजिए एक मेरी तरफ से लीजिए। 6ठी पूरन पोली मुंह में ठूसी गई। उसके बाद तो हाल ये थे फ्रेंड्स कि अगले 6 महीने तक अगर किसने पूरन पोली का नाम भी लिया तो थाली पटक के मार दूं। जस्ट किडिंग फ्रेंड्स, मैंने सपोज कहा था, इसमें से एक वर्ड भी सही नहीं है, तो ये भाषण का ही को दिया।
फ्रेंड्स द रीजन इज, इस पूरे एग्जाम्पल में जो दो स्टेटमेंट हमें समझने थे फ्रेंड्स, वो दोनों स्टेटमेंट आ चुके हैं. टोटल यूटिलिटी इज टोटल ऑफ ऑल द यूटिलिटीज फ्रॉम ऑल द यूनिट्स ऑफ द सेम कमोडिटी यूज्ड बाय अ कंज्यूमर. ये जो कुमार बन के गए थे वहां पे कंज्यूमर, 6 की 6 पूरनपोली खाई और सभी पूरनपोली मिलाकर जो टोटल खुशी मिली. सपोज मैं ऐसा मान लूं कि हर एक पूरनपोली से मुझे 5 यूनिट्स का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है. जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि मैं अपनी खुशी को नंबर में गिन पा रहा हूं. हमने बीच में एक बार डिस्कस किया था कार्डिनल अप्रोच ऑफ मार्शल, जहां पे हम सेटिस्फेक्शन को 1 2 3 4 ऐसा नंबर में गिन सकते हैं, ऐसा मान लेते हैं. बुक में एग्जांपल में ऐसा दिया है फ्रेंड्स कि अगर आप एप्पल खाने बैठे हो तो जो एप्पल आप खाते जाओगे, पहला एप्पल दूसरा एप्पल, उसमें से जो खुशी मिलेगी यूटिलिटी, उसको हम नंबर में गिनेंगे. तो ये मान लूं कि पहली पूरनपोली खाई 5 यूनिट का सेटिस्फेक्शन, दूसरी पूरनपोली खाई 5 यूनिट का सेटिस्फेक्शन, तीसरी पूरनपोली खाई 5 यूनिट का सेटिस्फेक्शन. सपोज 5 पूरनपोली खाई और 5-5 यूनिट करके 25 यूनिट का सेटिस्फेक्शन मुझे मिला, टोटल पांचों पूरनपोली मिलाकर. तो इट इज माई टोटल यूटिलिटी. व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी? फ्रेंड्स, मार्जिनल यूटिलिटी इज एन एडिशन टू टोटल यूटिलिटी. जो छठी ससुरी की पूरनपोली आई इज एन एडिशन टू टोटल यूटिलिटी बाय कंज्यूमिंग 1 more unit ऑफ द सेम कमोडिटी. ससुर ने भी पूरनपोली ही खिलाई, ऐसा नहीं कि चलो एक बड़ा खिला दूं तीखा वाला. उन्होंने भी पूरनपोली ही खिलाई. तो इन एडिशन टू टोटल यूटिलिटी बाय कंज्यूमिंग, बाय यूजिंग 1 more unit ऑफ द सेम कमोडिटी. डियर फ्रेंड्स, लेट मी क्लैरिफाई द थिंग हियर. वो जो छठी पूरनपोली मैंने खाई, उसके बाद अगर मैं गिनूं कि मेरा टोटल सेटिस्फेक्शन कहां तक पहुंचा, पांचों पूरनपोली खाने के बाद इट वॉज 25 यूनिट्स. छठी पूरनपोली खाने के बाद इफ इट रीच टू 28 यूनिट्स, तो अगर कोई मुझे पूछे कि छठी पूरनपोली जो आपने खाई उसमें से एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन, एक्स्ट्रा खुशी कितनी पाई, तो 28 माइनस 25 इट इज 3 यूनिट्स. ये बन गया मार्जिनल यूटिलिटी. फ्रेंड्स, आप बोलेंगे सर कितना कुछ आपने पका दिया सिर्फ 2 स्टेटमेंट को समझाने के लिए. हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि ये 2 स्टेटमेंट अगर समझ में नहीं आए तो आप रट्टा मार के थक जाओगे और फिर भी गलत लिख कर आओगे. तो टोटल यूटिलिटी इज टोटल ऑफ ऑल द यूटिलिटीज फ्रॉम ऑल द यूनिट्स ऑफ द सेम कमोडिटी, पूरनपोली पे पूरनपोली, यूज्ड बाय अ कंज्यूमर. जो पांचों पूरनपोली मैंने खाई उसमें से जो खुशी मिली दैट इज 25 यूनिट्स, वो बन गया टोटल यूटिलिटी. मार्जिनल यूटिलिटी इज एन एडिशन टू टोटल यूटिलिटी. 25 में 3 ऐड हो गया बाय यूजिंग 1 more यूनिट ऑफ द सेम कमोडिटी. छठी ससुरे की भी पूरनपोली ही थी और उससे जो एक्स्ट्रा खुशी मिली 3 यूनिट्स, इट इज माई मार्जिनल यूटिलिटी. डियर फ्रेंड्स, अगर आपने कभी ध्यान से चैप्टर 1 को रिवाइज किया हो तो उसमें जब हमने इंपोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स समझा था, हम अभी जो समझ रहे हैं ना फ्रेंड्स, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर, आप मेरे अकेले के बारे में स्टडी कर रहे हो तो इट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स. अपने जो पहले 5 चैप्टर है, ऑल दिस फर्स्ट 5 चैप्टर्स आर माइक्रो इकोनॉमिक्स. इंडिविजुअल बिहेवियर को स्टडी करेंगे हम एज एन इंडिविजुअल कंज्यूमर, एज एन इंडिविजुअल प्रोड्यूसर. एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट, पूरनपोली पे पूरनपोली, मैं अकेला कंज्यूमर, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स हुआ फ्रेंड्स. और ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स हम पढ़ रहे हैं, उसका जब हमने इंपोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा था, उसमें एक सब टॉपिक था इकोनॉमिक मॉडल. फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन 8 मार्क का है. एंड रिमेंबर वन थिंग, फॉर 8 मार्क्स आंसर वी शुड राइट मिनिमम 2 sides of full-scape page. I repeat, to write down answer of 8 marks, we should write 2 sides, minimum 2 sides of full-scape page. Friends, ये बोर्ड स्पेसिमेन पेपर में लिटरली नोटिफाई किया गया चीज है. फॉर 8 मार्क्स आंसर
you should write minimum 2 sides of fullscape page. तो यहां पर फ्रेंड्स 2 स्टेटमेंट लिख के आओगे, इसके तो 2 मार्क भी नहीं मिलेंगे, ये 8 मार्क का आंसर है। तो क्या करें? तो इकोनॉमिक मॉडल ऐसा बोलता था कि वॉट एवर वी स्टडी इन माइक्रो इकोनॉमिक्स वी शुड हैव एग्जाम्पल, इक्वेशन, शेड्यूल, ग्राफ, डायग्राम, ये सब की हमें हेल्प लेनी चाहिए। अब भी मैंने एक इक्वेशन डिस्कस किया फ्रेंड्स, अब मैं अपनी बात को प्रूव करने के लिए एक शेड्यूल, टेबल, एक डायग्राम, इसकी हेल्प लूं, तब जाके वो 8 मार्क के लिए परफेक्ट आंसर बनेगा। तो फ्रेंड्स, हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि अगर हम 7 एप्पल्स खरीदने वाले हैं, तो उसके लिए मैंने एक शेड्यूल बनाया है जिसको मैं यूटिलिटी को नंबर में गिन पाऊंगा। तो वी हैव वन शेड्यूल ऑफ 3 कॉलम्स, यूनिट्स, टीयू एंड एमयू। टीयू मतलब टोटल यूटिलिटी एंड एमयू मतलब मार्जिनल यूटिलिटी। तो एक टेबल अपने सामने आ रहा है, यूनिट्स लिखा है 1 2 3 4 5 6 7, टोटल यूटिलिटी लिखा है 10 18 24 28 28 26 22, एमयू लिखा है 10 8 6 4 0 0 पे लिखा है सैचुरेशन पॉइंट एंड आफ्टर दैट वी हैव -2 एंड -4। और फ्रेंड्स, ये आपका पहला टेबल है, पहला शेड्यूल है पूरे सिलेबस का। तो आप रट्टा मार के भी याद कर लोगे, आई नो, लेकिन पूरे सिलेबस में फ्रेंड्स वी हैव मोर देन, आई रिपीट, वी हैव मोर देन 25 टेबल्स, वी हैव मोर देन 45 डायग्राम्स। हर में आप रट्टा मार के नहीं याद रख पाओगे, एग्जाम में ये सब कंफ्यूज कर देगा। तो हाउ टू रिमेंबर दिस टाइप्स ऑफ टेबल्स फ्रेंड्स, उसके लिए वी हैव सम टेक्निक्स। आज मैं आपको सिर्फ टेबल इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, इसका जो टेक्निक है दैट विल बी आवर नेक्स्ट सेशन। टेबल ये है कि यूनिट्स मतलब जितने एप्पल मैंने खाए, पहला एप्पल खाया उसपे से 10 यूनिट का टोटल सेटिस्फेक्शन, टोटल यूटिलिटी, और 10 यूनिट का मार्जिनल यूटिलिटी मिला, ऐसा मान लेते हैं। फिर दूसरा एप्पल खाया, तीसरा एप्पल खाया, तो आप टेबल ऑब्जर्व करो, 18 24 28, तो स्लोली 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 टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस, बढ़ रहा है, एंड मार्जिनल यूटिलिटी 10 8 6 4 वो कम हो रहा है। जब मैंने 5वां एप्पल खाया तो टोटल यूटिलिटी अगेन 28, ये मैक्सिमम और कांस्टेंट है, और उसी वक्त सामने मार्जिनल 0, वहां पे लिखा है सैचुरेशन। और जब 6वां और 7वां एप्पल खाया तो अब टोटल यूटिलिटी कम होके 26 22, पेट भर गया, तो अब हमें उतना उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, हम उतना अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं। यहां पर मार्जिनल यूटिलिटी जो है ना, इट बिकम्स नेगेटिव। फ्रेंड्स, आई नो कि इस वक्त आपको ये टेबल में कुछ भी ज्यादा समझ में नहीं आया है, क्योंकि मैंने ज्यादा कुछ समझाया ही नहीं है। टुडे आई हैव जस्ट इंट्रोड्यूस द टेबल, आई डिडंट डू एनीथिंग एल्स। जब मैंने ससुराल जाके 5 पूरन पूरी खाई थी, माई टोटल सेटिस्फेक्शन वॉज 25 यूनिट्स, एंड जब 6ठी ससुरे की पूरन पूरी आई एंड माई टोटल यूटिलिटी इंक्रीज अप टू 28 यूनिट्स, तो अकेली जो 6ठी ससुरे की पूरन पूरी थी उसको खाकर मुझे जो एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिला, जो एक्स्ट्रा खुशी मिली, दैट इज 28 - 25, दैट इज 3 यूनिट्स। तो दिस इज द ग्रेट रिलेशनशिप between total utility, that is TU, and marginal utility, that is MU. Dear friends, ये दोनों के बीच में जो रिलेशन है, यही रिलेशनशिप हमें एज अ कंज्यूमर हाउ टू बिहेव इन नॉर्मल सिचुएशन, इस सोच को समझने में हेल्प करेगा। फॉर दैट पर्पस लेट्स डू some
conceptual explanation with one example. हमने लास्टली ये डिस्कस किया था कि वॉट एवर वी स्टडी इन माइक्रो इकोनॉमिक्स वी शुड हैव सम एग्जाम्पल, शेड्यूल, डायग्राम, ग्राफ, एक्सप्लेनेशन एक्सेट्रा. तो ये रिलेशनशिप को समझने के लिए भी वी हैव वन शेड्यूल, टेबल एंड डायग्राम विथ अस. थोड़ी देर के लिए हम ये मान लेते हैं कि यूटिलिटी दैट इज सेटिस्फेक्शन, इसको हम कार्डिनल अप्रोच दैट इज 1 2 3 4 ऐसे नंबर में गिन सकते हैं. यूटिलिटी दैट इज सेटिस्फेक्शन, इसको हम कार्डिनल अप्रोच मतलब इन टर्म्स ऑफ नंबर 1 2 3 4 ऐसा हम गिन सकते हैं. मतलब हम अपनी खुशी को नंबर में गिन सकते हैं, ऐसा थोड़ी देर के लिए हम मान लें. तो वी हैव वन टेबल, वन शेड्यूल, देयर इज 3 columns, units, total utility that is TU and marginal utility that is MU. We have one table जहां पे TU है, MU है और यूनिट्स है. मतलब जो प्रोडक्ट हम कंज्यूम करते हैं, जितनी बार कंज्यूम करेंगे वो सब यूनिट्स में लिखेंगे. जो हमें टोटल खुशी मिलेगी उसके कंजम्पशन से उसको हम TU में लिखेंगे. और जो एक्स्ट्रा खुशी मिलती जाएगी after every additional consumption of one more unit, whatever extra utility, additional utility we feel, उसको हम MU में लिखेंगे. टेबल बहुत आसान है. 1 2 3 4 5 6 7 that is units. TU में 10, 18, 24, 28, 28, 26, 22. MU में 10, 8, 6, 4, 0. 0 पे हमने लिखा है सैचुरेशन पॉइंट. देन -2 एंड -4. डियर फ्रेंड्स, सॉरी डियर फ्रेंड्स, यहां पर हम इस टेबल को समझकर पूरे साल के लिए याद रखने के लिए एक एग्जाम्पल की हेल्प ले रहे हैं. सपोज मैं कोई बैकवर्ड एरिया में, छोटे से गांव कस्बे में रहता हूं और कुछ पीरियड पहले एक मूवी आया था कबीर सिंह. सपोज ये कबीर सिंह मूवी उस वक्त रिलीज हुआ. उसका ट्रेलर देखकर मुझे लगा ये बहुत धार्मिक मूवी है, तो मुझे ये मूवी देखना है. सपोज गांव में एक ही थिएटर था और वो सिंगल स्क्रीन थिएटर था, नो मल्टीप्लेक्स, पीवीआर जैसा कुछ नहीं था, सिनेमैक्स जैसा कुछ नहीं था, आइनॉक्स जैसा कुछ नहीं था. सपोज सिंगल स्क्रीन थिएटर था. फ्राइडे को मूवी रिलीज हुआ और दोपहर के 12 बजे का पहला शो था. नून 12 to 3 मैंने फर्स्ट डे फर्स्ट शो का टिकट बुक किया 12 to 3 कबीर सिंह मूवी के लिए. एंड आई हैव वॉच दैट मूवी फॉर वेरी फर्स्ट टाइम. टाइमिंग वॉज 12 to 3 noon फ्राइडे, फर्स्ट डे फर्स्ट शो. एंड आई got 10 units of total utility and 10 units of marginal utility. पहली बार मूवी देखकर जो टोटल खुशी मिली और जो एडिशनल खुशी मिली, बोथ वर सेम, दैट इज 10 यूनिट्स. क्योंकि ऐसा मूवी मैंने पहली बार देखा था, तो जो भी खुशी मिली वो सब टोटल थी और वही एडिशनल थी, क्योंकि इसके पहले ऐसा कोई मूवी मैंने देखा ही नहीं था. अब फ्रेंड्स, मेरे नेचर का एक प्रॉब्लम है, जो भी चीज मैं करूं मुझे उस हर चीज का डिटेल पंचायती पसंद है, वॉट एवर इट इज. जब ये मूवी पहली बार मैंने देखा, क्लाइमेक्स तक सब कुछ समझा, लेकिन बीच में एक सीन है फ्रेंड्स जहां पे शाहिद कपूर मूवी के स्टार्टिंग में कॉलेज में पंजाबी में आके कुछ अनाउंसमेंट करता है हीरोइन की एंट्री के बाद, और मुझे पंजाबी समझता नहीं है. तो व्हाट आई थॉट कि मुझे ये मूवी दूसरी बार देखना है. तो व्हाट आई डिड, ए टॉर्च कम हियर. पता है वो टॉर्च, थिएटर में एक टॉर्च वाला रहता है, सबके सीट नंबर दिखा के वहां बैठिए वहां बैठिए, राइट ना फ्रेंड्स.
ये सीट नंबर दिखाना, चेयर दिखाना, ये तो बहाना है। बाकी मूवी चालू होने के बाद वो टॉर्च घुमा के देखते रहता है कि बाकी और कहां कहां मूवी चल रहा है। जस्ट किडिंग। तो फ्रेंड्स, व्हाट आई डिड, ए टॉर्च कम हियर, सेम मूवी, सेम थिएटर, सेम चेयर, सेकंड शो कंटिन्यू, ये ले टिकट का पैसा। तो मैंने सेकंड शो कंटिन्यू किया। टाइमिंग वॉज 3 to 6 एंड आई हैव वॉच्ड दैट मूवी, आई हैव सीन दैट मूवी फॉर second time, that is second unit. My TU increased and reached up to 18 units, 18 units. आप बोलेंगे सर, जब आपने पहली बार देखा तो 10 यूनिट था, तो दूसरी बार में ये 20 यूनिट होना चाहिए था। यू आर राइट, होना चाहिए था, पर ये 18 पे अटक गया क्योंकि अब मुझे मूवी का क्लाइमेक्स पता था, मुझे पता था एंड में क्या होना है। तो वो जो क्यूरियोसिटी होती है कि सस्पेंस जो ऐसा कुछ था ही नहीं। मैं तो फ्री था, तो चलो भाई मूवी देख लेते हैं दूसरी बार, पूरा मूवी समझ लूं। तो माई TU इंक्रीज्ड, डिक्रीज नहीं हुआ है, इंक्रीज्ड एंड रीच अप टू 18 यूनिट्स। अब यहां पे आके कोई मुझे पूछे कि सर ये सेकंड शो से आपको एक्स्ट्रा कितना सेटिस्फेक्शन मिला, एक्स्ट्रा खुशी कितनी मिली, तो माई आंसर इज 8 यूनिट्स। कैसे आया ये? 18 माइनस 10, प्रीवियस का 10 था सॉरी, तो उसको डिडक्ट कर दिया, तो 18 माइनस 10 दैट इज 8 यूनिट्स। अब शाम के 6 बज चुके थे, 2 बार मूवी हो चुका था, समा है सुहाना सुहाना। फ्रेंड्स, अब उसमें जो एक गाना है और एक सीन है जहां पर चालू बाइक में हीरो हीरोइन किस कर सकते हैं, मुझे सब समझना था कि ये सब कैसे होता है, क्योंकि मैं तो कभी ये सोच ही नहीं पाया ऐसा कुछ पॉसिबल है। तो मुझे वो समझना था। मूवी तो समझ में आ गया सब, अब मुझे ये चीज समझनी थी। तो व्हाट आई डिड, ए टॉर्च कम हियर, थर्ड शो, सेम मूवी, सेम थिएटर, सेम चेयर, ये ले टिकट का पैसा। टाइमिंग वॉज 6 to 9। आई हैव सीन मूवी फॉर थर्ड टाइम, दैट इज थर्ड यूनिट। My TU further increased and reached up to 24 units. देखिए फ्रेंड्स, पहली बार में 10 यूनिट, तो दूसरी बार में 20 और तीसरी बार में 30 तक जाना चाहिए था। लेकिन अब मेरा इंटरेस्ट ना तो मूवी में था, ना तो क्लाइमेक्स में था। अब मेरा इंटरेस्ट सिर्फ वो एक भजन में था जहां पे शाहिद कपूर को प्रसादी मिलती है। जस्ट किडिंग फॉर ऑल दीज थिंग्स। फिर ये सब याद रखने का तरीका होता है। तो माई TU इंक्रीज्ड एंड रीच अप टू 24 यूनिट्स एंड माई MU वॉज 6 यूनिट्स। अब ये कैसे आया, तो थर्ड का था 24 TU माइनस ऊपर वाला 18 यूनिट्स डिडक्ट कर दिया TU का। तो थर्ड यूनिट में, थर्ड शो में जो मुझे एक्स्ट्रा खुशी मिली, इट वॉज जस्ट 6 यूनिट्स। रात के 9 बज चुके थे। फ्रेंड्स, मैं 3 बार मूवी देखकर शाहिद कपूर के रोल से, उसकी ड्रेसिंग स्टाइल, उसका बाइक चलाने का तरीका, उसकी वॉकिंग स्टाइल, चीखना चिल्लाना, वड़ा पाऊं पाऊं पाऊं, वड़ा 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 पाऊं, वो जो म्यूजिक बजते रहता है, ये सबसे काफी इंप्रेस हो चुका था। तो मुझे ये सब चीज वापस एंजॉय करनी थी कि उसकी ड्रेसिंग स्टाइल जो है मैं उसको फॉलो करूं, लेटेस्ट फैशन क्या चल रहा है, उसका कुछ डायलॉग्स, ये मेरी बंदी है। तो कुछ चीजों से मैं काफी इंप्रेस हो गया था फ्रेंड्स। तो व्हाट आई डिड, रात को 9 बज चुके थे, ए टॉर्च कम हियर, सेम मूवी, फोर्थ शो, सेम थिएटर, सेम चेयर, ये ले टिकट का पैसा। टाइमिंग वॉज 9 to 12, 9 से 12। आई हैव सीन मूवी फॉर फोर्थ टाइम। माई टोटल यूटिलिटी इंक्रीज्ड एंड रीच अप टू 28 यूनिट्स। अब यहां पे आके कोई पूछे कि सर अकेले चौथे शो से आपको एक्स्ट्रा कितना मजा आया, क्योंकि बीच में 3 बार तो मैं बाहर जाके समोसा खा के वापस आया था, क्योंकि अब मुझे मूवी में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। अब मुझे सिर्फ वो फैशन का ट्रेंड, उसके कुछ डायलॉग्स, उसकी कुछ स्टाइल, बस उसी को फॉलो करना था, उसी को ऑब्जर्व करना था। तो माई MU इन फोर्थ शो वॉज जस्ट 4 यूनिट्स, 28
माइनस प्रीवियस वाला 24, 28 माइनस प्रीवियस वाला 24, तो इट वॉज जस्ट 4 यूनिट्स। अब मेरी आंखें भारी हो चुकी थी, आप भी समझ सकते हैं फ्रेंड्स, 4 बार एक का एक मूवी कंटिन्यू देखकर क्या बचता होगा। शाहिद कपूर तो ड्रिंक करके बैठा था, मेरी हालत तो उसके बगैर भी ऐसी हो गई थी, विदाउट ड्रिंक। अब सोचा कि घर जाऊं फ्रेंड्स। अब याद आया कि एक मोबाइल मेरे पास है जो सुबह से स्विच ऑफ है, और घर पे एक बीवी है जो स्विच ऑन होगी। अब मैं सोच रहा था कि जैसे मैं स्विच ऑन करूं फोन, तुरंत घंटी बजेगी, कहां पे हो, क्या कर रहे हो, तो क्या जवाब दूं। सोचा झूठ बोल दूं कि लेक्चर ले रहा हूं, तो वो भी इंटेलिजेंट, तुरंत पूछेगी स्टूडेंट्स का आवाज तो नहीं आ रहा है। तो सोचा किसी थिएटर में से किसी को बोलूं कि एक्सक्यूज मी, थोड़ा झूठा ऐसा पूछो, सर ये डायग्राम कहां से आया, सर ये आंसर कहां से आया। पर मैं कुछ बोलूं, किसी को रोकूं, उसके पहले देखा तो पूरा थिएटर क्लीन। रात को 12 बजे हर किसी को घर जाने की जल्दी होती है, पूरा थिएटर निकल चुका था। सोचा एक काम करता हूं, अब वो जो टॉर्च वाला था वो मेरा फ्रेंड बन चुका है, उसको बुलाऊं। अब मैं उसको बुलाऊं, उसके पहले वो खुद ही आ गया। बोले सर हमारे मैनेजर आपको मिलना चाहते हैं। मैंने कहा क्यों? बोले पता नहीं। उतनी देर में मैनेजर आया, सर आपने ये सेम मूवी एक ही चेयर पे बैठकर 4 बार कंटिन्यूस देखा। मैंने कहा हाँ, कोई गुनाह हो गया? बोले नहीं सर, एक रिक्वेस्ट है, इसके पहले भी हमारे वहां पर किसी एक बंदे ने 4 बार ये ऐसा कोई मूवी कंटिन्यू देखा था, तो उसके नाम पे एक रिकॉर्ड बन चुका है। सर एक रिक्वेस्ट है, 5th शो मिडनाइट 12 to 3, रात को 12 से 3, ओनली फॉर यू हम चलाएंगे। कल न्यूज़पेपर में आपका नाम आएगा कि आपने वो रिकॉर्ड तोड़ दिया 5 बार एक मूवी देखकर। मैंने कहा इसमें तेरा क्या फायदा? बोले सर साथ में हमारे थिएटर का भी नाम आएगा, और आपको टिकट का पैसा भी नहीं देना है, टोटल फोकट में शो। बीच में थम्स अप, समोसा, पॉपकॉर्न सब फोकट। अब जहां पे मुफ्त बात आती है वहां पे मैं रुक जाऊं, तो मैंने हाँ बोल दिया, फोकट की बात थी। तो 5th शो आई हैव सीन midnight 12 to 3. Believe me friends, my total utility did not increase at all. It was remain constant at 28 units only. ये 28 पे आकर अटक गया, ना वो ऊपर गया ना वो नीचे आया। तो इट वॉज मैक्सिमम एंड कॉन्स्टेंट एट 28 यूनिट्स। यहां पे आके कोई मुझे पूछे कि सर आपको 5th शो में, अकेले 5th शो में एक्स्ट्रा कितना मजा आया, माई आंसर वॉज 0 यूनिट्स। 28 माइनस प्रीवियस वाला भी 28, तो इट इज 0 यूनिट्स। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन पॉइंट का मतलब होता है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेवल। मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेवल फ्रेंड्स, हर एक की लाइफ में कुछ चीजों को लेकर ऐसा एक वक्त आता है जब कोई चीज आपको एक मैक्सिमम लिमिट तक खुशी देने के बाद वहां पे थम जाए, रुक जाए। अगर उसके बाद भी आप उस चीज से जुड़े हुए रहते हो तो आफ्टर सम टाइम वो आपको कोई खुशी नहीं देगी, वो चीज आपको कोई खुशी नहीं देगी। दैट इज सैचुरेशन पॉइंट, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल। सच बताऊं तो फ्रेंड्स, 5th शो में मैं मूवी देख ही नहीं रहा था, मेरा मूवी में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। 5th शो के वक्त ना तो मेरा इंटरेस्ट कोई मूवी में था, ना क्लाइमेक्स में था, ना भजन में था, ना फैशन में था, अपना इंटरेस्ट सिर्फ फोकट के भोजन में था। तो मूवी में कोई लाइकिंग नहीं था, इसलिए मुझे कोई एक्स्ट्रा खुशी उस 5th शो से नहीं मिली। फ्रेंड्स, अब रात के 3 बज चुके थे। अब मेरी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। अब तो ये भी पक्का हो गया कि मैं जैसे ही फोन स्विच ऑन करूं, ये झूठ भी नहीं बोल पाऊंगा कि लेक्चर था। इतना लेट तक लेक्चर नहीं होता है, किसी को भी समझता है। मैं कुछ सोच पाऊं
उससे पहले मैनेजर वापस आया, बोले सर आप प्रशांत सर? मैंने कहा तेरे को कैसे पता? बोले आप इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर? मैंने को तेरा कैसे पता? तेरे को कैसे पता है सब? बोले दोपहर के 12 बजे से फोन स्विच ऑफ है। मैंने कहा भाई तेरे को ये सब कैसे पता? बोले आधी दुनिया को पता है। मैंने कहा कैसे? बोले टीवी की सभी चैनल के ऊपर आपकी वाइफ ने आपका फोटो और आपका डिटेल देके रखा है, आप पण याला पायलट का मोस्ट वांटेड। मैंने कहा अरे बाप रे। बोले सर बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हमने भाभी जी को कांटेक्ट करके बोल दिया है कि आप जिनको ढूंढ रहे हो वो हमारे वहां पे दोपहर से कबीर सिंह मूवी देख रहे हैं। मैंने कहा अरे यार तू मेरा डिवोर्स कराएगा? बोले नहीं सर, भाभी जी का नेचर बहुत अच्छा है। मैंने कहा तुझे सिर्फ फोन में पता चल गया? बोले हाँ। मैंने कहा तू गलत जा रहा है भाई, वो नाखून मार के खून निकालेगी और मैं उफ तक नहीं कर पाऊंगा। बोले नहीं नहीं, भाभी जी ने कहा उनको वहीं पर बिठाओ, वो भी यहीं पर आ रहे हैं। और उतनी देर में सच में मैडम खुद आ गए। मेरे तो पैर कांपना शुरू, कान पकड़ के कहा सॉरी डार्लिंग, आई लव यू ना? बोलती आई लव यू टू, बैठिए ना। मैंने कहा डार्लिंग जो कुछ भी कर रहे हैं घर जाके प्लीज। बोले नहीं। मैंने कहा डार्लिंग आज से मैं तेरी हर बात मानूंगा, बस तेरी हर बात मानूंगा। बोले पक्का? मैंने कहा एकदम पक्का। बोले तो बैठिए। मैनेजर साहब एक शो हम दोनों के लिए स्पेशली फॉर 2 रात को, फ्रेंड्स रात को 3 से 6 6th शो चलवाया गया। एंड बिलीव मी माई टोटल यूटिलिटी डिक्रीज्ड अप टू 26 यूनिट्स। 2 कम हो गया। एंड देर इज वाई MU became negative. There is -2, 26 minus 28, तो it is -2 units. 26 minus 28, तो it is -2 units. अब तक जो भी खुशी मुझे कबीर सिंह मूवी से मिली थी वो तो सब चले गई। अब तो मुझे नफरत होने लगी। पूरे मूवी में मेरी वाइफ ये देख रही थी कि मूवी में क्या चल रहा है, मैं उसको देख के सोच रहा था कि वो मेरे बारे में कब क्या सोच रही है। और ऐसा करके 6th शो खत्म हुआ। कोई पूछे तो एक्स्ट्रा कितना मजा आया? अरे भाई सब मजे चले गए। इट इज -2 यूनिट्स। जैसे ही मूवी खत्म हुआ मैंने कहा सुबह के 6 बज चुके हैं, अब हम घर चले प्लीज। बोलती है बैठिए ना, मैंने एक और शो के लिए पूरे थिएटर को बुक किया है। मैंने कहा व्हाट? बोलती है हाँ। इंटरवल में मैनेजर को जाके आपके सभी स्टूडेंट्स के कांटेक्ट नंबर दे दिए और सबको मैसेज चला गया है कि आपके प्रशांत सर क्या कर रहे हैं, उसके लिए आप आइए। और सब पूरा थिएटर बुक हुआ है, सभी स्टूडेंट्स आएंगे 12th के और आपके साथ कबीर सिंह मूवी देखेंगे। मैंने कहा स्टूडेंट्स नहीं आएंगे? बोले आएंगे। मैंने कहा कैसे आएंगे? बोले पूरा शो बुक किया है 6 to 9 मॉर्निंग 6 to 9। फ्रेंड्स मॉर्निंग 6 to 9। मैंने कहा स्टूडेंट कैसे आएंगे? घर पे क्या बोलेंगे? बोले सब आपकी तरह मास्टर है, घर पे सब लोग ये बोलेंगे कि प्रशांत सर ने इकोनॉमिक्स का एक्स्ट्रा लेक्चर रखा है और बहुत टफ टॉपिक है, इसलिए सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बुलाया है फ्रेश माइंड से पढ़ने के लिए। और आप सब लोग बेशर्म भी आ गए हुड्डू करके, पूरा थिएटर पैक। आप सब लोग मूवी देखने लगे और मैं ये देखने लगा कि कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। 7th शो कंप्लीटेड। सुबह 9 बजे माई TU फर्दर डिक्रीज अप टू 22 यूनिट्स। मेरी पर्सनल लाइफ, मेरी प्रोफेशनल लाइफ सब खत्म। अब 7th शो के बाद कोई पूछे कि आपको एक्स्ट्रा कितना मजा आया, इट वॉज जस्ट -4 यूनिट्स। और ये कैसे आया? लास्ट वाला 22 माइनस उसके प्रीवियस वाला 26, तो 22 माइनस 26 इट इज -4 यूनिट्स। फ्रेंड्स ये तो अच्छा हुआ कि वाइफ ने ये नहीं कहा कि हम 8वां शो भी देखेंगे जहां पे आपके मम्मी डैडी और मेरे मम्मी डैडी आएंगे। वो लास्ट सेशन वाली सासू माँ जो पूरण पूरी खिला रही थी वो भी तो देखे कि आप क्या गुड़ खिला रहे हो। अगर ऐसा होता तो मुझे इतना गुस्सा आता कि जिस चेयर पे बैठ के मैं मूवी देख रहा था, उसी को फाड़ के डूचा बना के मैं कबीर सिंह के मुंह पे मार दूं।
फ्रेंड्स, ये पूरी बात में नॉट अ सिंगल वर्ड इज करेक्ट। मैंने कबीर सिंह मूवी आज तक पूरा कभी देखा ही नहीं है। ये पूरा एक एग्जाम्पल था ताकि अब हमें ये पूरा टेबल समझ में आए। अगर मैं इस टेबल को इकोनॉमिकली एक्सप्लेन करूं, बहुत अच्छे से समझा पाऊं, तो एट द फर्स्ट लेवल, एट द फर्स्ट यूनिट, TU and MU both are same, that is 10 units. From the second unit, TU increases, बढ़ तो रहा है, but at a diminishing rate, मतलब बढ़ते हुए कम हो रहा है, या ऐसा बोले कम होते होते बढ़ रहा है, क्योंकि वो 10 से 18 पे गया, 18 से 24 पे गया, 24 से 28 पे गया, तो ये कम होते होते बढ़ रहा है, डिमिनिशिंग। तो फ्रॉम द सेकंड लेवल, फ्रॉम द सेकंड शो, TU increases but at a diminishing rate, increases but at a diminishing rate, increases but at a diminishing rate, and MU decreases, MU decreases, MU decreases. At the fifth level, जब हम पांचवें शो पे आए, at the fifth level, at the fifth level, जब हम पांचवें शो पे आए, तो at the fifth level, TU is maximum and constant, maximum and constant, that is 28 units, and MU becomes zero, MU becomes zero, that is saturation point. After fifth show, जब मेरी वाइफ ने एंट्री मारी, after fifth show, TU decreases, and MU becomes negative, MU becomes negative, MU becomes negative. This is the great relationship between TU and MU. कोई भी चीज शुरुआत में आपको TU और MU सेम खुशी देगा, जैसे जैसे आप उसका इस्तेमाल बढ़ाओगे तो आपका जो टोटल यूटिलिटी है, TU जो है वो बढ़ेगा पर उसकी स्पीड कम हो जाएगी, और जो MU है, MU वो कम होते जाएगा। एक लेवल पे आने के बाद TU मैक्सिमम और कांस्टेंट हो जाएगा, and MU will become zero, MU will become zero. After some time, TU will decrease and MU will become negative, MU will become negative. Friends, ये हो गया शेड्यूल का explanation. Now we are going towards diagram. If you are observing the adjoining diagram, जो डायग्राम आपको बाजू में दिख रहा है, फ्रेंड्स ये डायग्राम अच्छे से समझिए, क्योंकि ऐसे 45 डायग्राम्स पूरे सिलेबस में हमें ड्रॉ करने पड़ेंगे, एंड वी हैव टू ड्रॉ इट। तो बहुत अच्छे से इसको समझिए। जो टेबल में 3 कॉलम थी उसी का इस्तेमाल करके हम इस डायग्राम को बना रहे हैं। एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन है, वाई एक्सिस वर्टिकल लाइन है, दोनों जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो बन गया जीरो, ओरिजिन जीरो। एक्स एक्सिस पे 1 2 3 4 5 6 7 1 सेमी के गैप के ऊपर हमने यूनिट्स ले ली है, जो 7 बार मैंने मूवी दिखा वो नंबर। रिमेंबर वन थिंग फ्रेंड्स, डायग्राम मस्ट बी विथ पेंसिल, पेन इज नॉट अलाउड, पेन इज नॉट अलाउड, पेन इज नॉट अलाउड, एंड ग्राफ पेपर इज नॉट अलाउड, ग्राफ पेपर इज नॉट अलाउड। We have to draw diagrams in economics in normal answer sheet. डायग्राम का कोई अलग से क्वेश्चन नहीं आएगा। They won't ask special question on diagram. They will not mention even कि please draw the diagram in this answer. They will not mention it. You have to remember this कि इस आंसर में यहां पर ये डायग्राम आएगा। तो फ्रेंड्स एक्स एक्सिस पे यूनिट्स आएगा 1 2 3 4 5 6 7, y एक्सिस पे वी हैव TU एंड MU, TU एंड MU। जीरो के नीचे हम लेके जाएंगे -5। अगर आप अपना टेबल ऑब्जर्व करोगे ना तो -4 इज द स्मॉलेस्ट नंबर एंड योर लार्जेस्ट नंबर इज 28। तो -5 जीरो के नीचे, जीरो के ऊपर 5 10 15 20 25 30, जीरो के ऊपर 5 10 15 20 25 30।
अब टेबल को ऑब्जर्व करो फ्रेंड्स, जस्ट ऑब्जर्व द टेबल फर्स्ट। अपना फर्स्ट यूनिट में टीयू और एमयू दोनों 10 है, तो 10 पे डॉट मार्किंग कर दिया। अब सेकेंड यूनिट में टीयू 18 है तो 20 से थोड़ा नीचे, और एमयू 8 है तो 10 से थोड़ा थोड़ा नीचे, वहां पे डॉट मार्क कर दिया। अब थर्ड यूनिट में टीयू 24 है तो 25 से थोड़ा नीचे, थोड़ा और एमयू 6 है तो 5 से थोड़ा ऊपर। फोर्थ यूनिट पे टीयू 28 है तो 30 से थोड़ा नीचे, और एमयू 4 है तो 5 से थोड़ा नीचे, उसको डॉट मार्क कर दिया। यूनिट 5 पे 28 वापस, ओके। एंड एमयू 0 पे ना ऊपर ना नीचे, ना ऊंचू ना नीचू, एग्जिट एक्स एक्सिस पे डॉट मार्क कर दिया, मार्किंग कर दिया। ये सब हम मार्किंग करे, पॉइंट्स रख रहे, पॉइंट्स डिनोट कर रहे हैं पेंसिल से ओके। आफ्टर दैट वी हैव यूनिट 6 जहां पे टीयू 26 है, 25 से थोड़ा ऊपर, और एमयू -2 है एक्स के लाइन के नीचे। यूनिट 7 टीयू 22 है, 20 से थोड़ा ऊपर, एंड एमयू -4 है, -4 तो -5 से थोड़ा ऊपर। अब हम क्या करेंगे, पेंसिल से एक कर्व बनाएंगे फ्रेंड्स। कर्व मतलब विदाउट स्केल, विदाउट रूलर, पट्टी नॉट अलाउड। सभी टीयू के पॉइंट्स को अब इंटरकनेक्ट किया है, फ्रेंड्स। 10, 18, 24, 28, 26, 22। 28 जो दूसरा वाला है वहां पे लिखा हुआ है सैचुरेशन पॉइंट, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल। तो आपका जो टीयू का कर्व है वो पहले ऊपर गया, स्लोप्स अपवर्ड, फिर वो कांस्टेंट हुआ और फिर वापस नीचे आया, स्लोप्स डाउनवर्ड। अब एमयू के लिए 10, 8, 6, 4, 0, -2, -4, इसको भी हम पेंसिल से कर्व बनाएंगे। तो एमयू कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, वो एक्स को कट करके नीचे चला गया है। अगर मैं इस डायग्राम को एक्सप्लेन करूं फ्रेंड्स, तो टीयू कर्व एंड एमयू कर्व both begins from the same level, that is 10 units. When TU curve slopes upward, MU curve slopes downward. When TU curve is at highest level, दूसरा वाला 28 देखो फ्रेंड्स, प्लीज वॉच दिस थिंग इन एडजॉइनिंग डायग्राम में देखिए, बाजू में नजर कीजिए फ्रेंड्स, एडजॉइनिंग डायग्राम में देखिए, ओके। तो वहां पे जो दूसरा वाला 28 है वहां पे आपका कर्व रुक गया है, उसके ऊपर नहीं गया है। तो व्हेन द टीयू कर्व इज एट हाईएस्ट लेवल, एमयू कर्व इंटरसेक्ट्स, कट करके निकला, इंटरसेक्ट्स नहीं फ्रेंड्स, इंटरसेक्ट्स, कट करके निकला। एमयू कर्व इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस। When TU curve slopes downward, in the end, MU curve goes below x-axis. This is the great relationship between total utility and marginal utility. Friends, आपका डायग्राम कितना राइट और कितना रॉन्ग है, अगर ये चेक करना हो तो आपका जो दूसरा वाला 28 है यूनिट 5 पे, और जो 0 है उसको चेक करके रखिए, पट्टी से देख लीजिए। अगर वो स्ट्रेट लाइन आ रहा है तो योर डायग्राम इज 100% राइट। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं चीटिंग सिखा सकता हूँ। अगर किसी का डायग्राम ड्राइंग पुअर है, कोई मेरे जैसा बुद्धू है जिसको लाइन मारने को नहीं समझता है, फ्रेंड्स मेरे को लाइन मारने को बिल्कुल नहीं समझता है, जिसको समझता है अच्छा है, जिसको नहीं समझता है उसके लिए बोल रहा हूं। यू कैन परफॉर्म वन चीटिंग, आप एक चीटिंग कर सकते हो। जब मैं 12th में था तो जो मैं करता था वो सिखा रहा हूं। क्या कर सकते हैं हम फ्रेंड्स, हम पहले यूनिट्स एक्स एक्सिस पे लिखेंगे, TUMU y पे लिखेंगे, और पहले यूनिट 5 पे
28 पे डॉट करके पहली पट्टी से लाइन बना दो, स्ट्रेट लाइन। बाकी सब पॉइंट्स बाद में इग्नोर करो। तो जब आप कर्व बनाओगे तो कंपलसरी कर्व को वहीं से पास ऑन करना है। देखो, पेपर चेकर को नहीं पता है कि आपने पहले कर्व बनाया था कि पहले लाइन मारा था। उसने तो ये देख लिया स्ट्रेट लाइन आ रहा है, हल्के से स्ट्रेट लाइन बता देने का, हल्के से। तो योर डायग्राम इज 100% राइट। प्लीज ट्राई टू ड्रॉ दिस डायग्राम ट्वाइस इन योर नोटबुक, प्लीज। ये सब चीजें फ्रेंड्स जितना आप लिखोगे उतना समझ में आएगा। और ये डायग्राम, ये शेड्यूल कोई बुक से नहीं चुराया हुआ है फ्रेंड्स। ये कोई एग्जाम्पल आपको कोई बुक में नहीं मिलेगा। इट इज माई ओन क्रिएटेड एग्जाम्पल। ओके, तो प्लीज I hope